Good afternoon, everyone. Respected guests, our chief guests, members of DUS EduHub, and all other dignitaries present today. It gives me immense pleasure to bring you to the inauguration of DS EduHub. So, DS EduHub is coming up with its own SSC Coaching Institute. So, today we gather here to introduce all our faculty members and our team members. Before we go ahead with the inauguration ceremony, I want to quote a line by Mr. Nelson Mandela, wherein he said that if you want to destroy a country, I repeat, if you want to destroy a country, you don't need guns, bombs, anything. You just destroy it by destroying its education system. So, it is very clear and evident that education is the foundation stone of any country. Starting any education institution is not easy. We definitely need the students, the children's support who are joining us online as well to support this institute. In return, what do we bring for you? Esteemed faculties, rigorous syllabus, timely assessments, and also dedicated support. So it's a mutual support with ours and yours. We are going to make your SSC journey easier. So let's begin with the ceremony. To start off, I'll introduce all our faculties and members of the team. So firstly, we have Mr. Dharmveer Singh Chaudhary sir, who is the chairman of the organization. Sir, if we can have you on the stage. Second, we have Mr. Manveer Singh Chaudhary, who is the director of DS EduHub. Sir, if we can have you. Now, I would like to request Dharmveer sir and Manveer sir to welcome two chief guests for today and give them a bouquet for today's ceremony. The first chief guest is Mr. Aman Pratap Singh. Just to give you an introduction, sir, please, if we can have you on stage. Aman sir has qualified UPSC and currently serving as a probationer in IRMS segment. Our next chief guest is Mr. Umesh Jayas sir. Sir, if we can have you on stage. Sir has qualified SSC and is also a superintendent in GST segment. So I would request sirs to give him a bouquet and welcome on the stage. We will definitely hear some words of wisdom from both of the chief guests. But before that, I'll introduce our faculty members. So the first one, we have Mr. Yutendra Kumar sir. Sir, if we can have you on stage. To brief about Yutendra sir, he has 15 years of experience in the SSC segment and he has been associated with some premier institutes in this particular segment. Also, he has an administrative experience of 4+ years wherein he has run his own institutes in SSC. He will be our faculty for maths. Also, to brief about his qualifications, he has done BSc, MSc, MBA, B.Ed and DLL. So it's a rich basket of experience with which we are onboarding sir with our team. Welcome sir to DS EduHub. Now,
The second faculty is Mr. Santosh Tiwari, sir. Sir, if we can have you on stage, please. Santosh, sir, will be associating with us with the subject of English. To brief about him, Santosh sir has 25 years of experience. He has also been part of very premier institutes in the SSC segment. An important point here is he has himself qualified SSC. So it's not only the faculties which we onboard, it's also the real field experiences of these faculties with DS EduHub, which we are bringing for the students. So he is our English teacher. He has qualified SSC and also CTET exam. So we welcome Santosh sir in association with DS EduHub. Then our third faculty member is Mr. Amit Singh sir. Sir, if we can have you on stage, please. Amit sir is qualified in BCom, MCom, B.Ed as well as CTET. He also holds 10 plus years of experience in teaching. He will be teaching GS specific to economics. There are other teachers also. Due to certain circumstances, they have not been able to be here today with us. But as and when this video comes up on YouTube, we'll introduce the other faculty members as well. So today, we will start off the event with these panel members. Once again, before we start, if we can have one round of applause for DS EduHub. So we will start off by lighting the diya, which is an auspicious event. So after lighting the diya, we will listen to some words of wisdom from each of the members. So I request all the members to come down once. We'll have the ceremony of lighting the diya. And other team members also we can have here. So now, as DS EduHub is officially on the platform, I will request to give some inaugural speech by धर्मवीर सिंह चौधरी sir, who is our chairman. Sir, आप कुछ अगर हमारे लिए बोल सकते हैं. नमस्कार.
और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, समर्पित शिक्षकों, उत्साही अभिभावक और मेरे प्रिय भविष्य के अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक भरोसे का नया चेहरा है, जिसे हमने पिछले 15 वर्षों के साथ मिलकर बनाया है। जब हमने 15 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा था, तो हमारा सपना यह था, लेकिन संसाधन सीमित थे। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो गर्व होता है कि हमारे लर्निंग स्कूल ने न केवल छात्रों को पढ़ाया, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। इन 15 सालों में हमने हजारों परिवारों के सपनों को सच होते देखा है। यह विरासत केवल ईंट और दीवारों से नहीं, बल्कि हमारे छात्रों की सफलता और उनके चरित्र से बनी है। मैंने 2010 में एक सीबीएसई विद्यालय की नींव रखी थी और मेरा यह सपना था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे सीबीएसई से पढ़कर कहीं आगे निकलें, और नहीं तो ग्रामीण बच्चे घूम फिर करके और उधर वहीं रह जाते हैं। क्षेत्र के अभिभावकों ने सोचा, समझा, बच्चों को एडमिशन कराया और मैंने बड़े डिसिप्लिन से, अच्छी फैकल्टी से और बच्चों को आगे ले गया। आज मेरे विद्यालय से निकले हुए 4 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। एक मेरा खुद का भतीजा साइंटिस्ट हो गया है और कुछ बच्चे सीजीएल वगैरह में निकल गए हैं। बाकी इंस्पेक्टर वगैरह भी हैं। अब कुछ लोगों की डिमांड आई कि क्यों न यहाँ पर एक कोचिंग की संस्था बनाई जाए, ताकि जो गरीब अंचल के बच्चे हैं वो न प्रयागराज जा पाते हैं, न दिल्ली जा पाते हैं। तो मैंने सलाह डीएस हब के डायरेक्टर मनवीर से ली और पूछा मैंने कि अगर तुम संभाल सकते हो और मेरी तरह से इसको बढ़ा सकते हो, तो इनके मन में थी, क्योंकि ये यूपीएससी की परीक्षा दी, 2 मेंस लिखी है, इंटरव्यू दिया। चलो ठीक है, वो किस्मत की बात होती है, कहाँ क्या है। तो मैंने ग्रामीण अंचल में दोबारा से फिर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी है। अब केवल मुझे अच्छी फैकल्टी और आप जैसे अच्छे लोगों के सहयोग की जरूरत है, ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चे भी कहीं कुछ बनकर और आगे निकल जाए। बस यही कहना चाहूंगा मैं। Thank you, sir, for your wise wisdom words. As sir said, education should reach every corner of India, not only the cities, but हर एक गांव, हर एक शहर, हर जगह एजुकेशन पहुंचना चाहिए। इसलिए शायद हमने शुरू किया है DS Edu Hub. Now, I would request Manveer Singh Chaudhary, sir, Director of DS Edu Hub, to share some words with us. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को
यहाँ आने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। Today is not just an inauguration, it is a landmark moment for DS EduHub family. जब से, जैसा कि अभी चेयरमैन सर ने बताया कि 15 ईयर से हम एक एजुकेशन लेगेसी में वर्क कर रहे हैं। आज से 15 साल पहले हाथरस के एक गांव कुरावली में एजुकेशन में अपना पहला कदम रखा था, तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही था, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। इन दिस लास्ट 15 ईयर हमने स्कूल एजुकेशन में एक ऐसी लेगेसी बिल्ड की है जिस पर हमें गर्व है। मथुरा हाथरस के हजारों बच्चों को संभालने के बाद आज हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। दोस्तों, एसएससी के लिए बच्चों के लिए एक ही बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट, विश्वास, और पिछले 15 सालों से डीएस एजू हब अपने विश्वास को मथुरा हाथरस के घर घर में दिखा रहा है। हमने देखा है कि एक बच्चा कैसे मेहनत करता है स्कूल में। जब बात बच्चे की करियर पे आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आती है, तब वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ के बच्चे एजुकेशन के लिए दिल्ली या प्रयागराज जाते हैं। वहाँ का खर्चा, घर से दूर रहने की टेंशन, वही पुराना रट्टा मार तरीका। जब हमने सोचा अगर हम बच्चे की स्कूल की बुनियाद रख सकते हैं तो उसके करियर की बिल्डिंग क्यों नहीं बना सकते हैं। बट टाइम्स आर चेंजिंग। आजकल ज़माना डिजिटल है, इसलिए डीएस एडू हब अब हाथरस मथुरा की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा। टुडे वी आर ऑफिशियली लॉन्चिंग आवर ऑनलाइन एसएससी वर्टिकल। हम ऑफलाइन की लेगेसी को ऑनलाइन की पावर के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हमने ज्योग्राफी की दीवारों को गिराया है। वी आर नाउ पैन इंडिया। हम चाहते हैं कि इंडिया की किसी भी कोने का बच्चा, अब चाहे वो बिहार के छोटे गांव से हो या फिर वो महाराष्ट्र के किसी बड़े शहर से हो, उसे वही हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले जो सिर्फ पहले बड़े शहरों के बच्चे लिया करते थे। टू माय डियर स्टूडेंट, मैं बस इतना ही कहूँगा, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी उठ नहीं सकता है। मन से अपने मन को मजबूत कीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। अपने सपने बड़े रखिए। आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपके सपने साकार कराएंगे। नाउ आई ऑफिशियली डिक्लेयर द डीएस एडू हब ऑनलाइन एसएससी वर्टिकल ओपन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स। जैसे सर ने बोला, अब हम सीमित नहीं हैं एक क्षेत्र तक। वी आर पैन इंडिया, वी आर ऑनलाइन एंड वी वांट टू रीच एवरी स्टूडेंट्स हु नीड द बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग फॉर एसएससी। नाउ आई मूव ऑन टू द चीफ गेस्ट्स। जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन सर और उमेश सर। सर, आप लोगों ने खुद भी एग्ज़ाम को क्लियर किया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर किया है। आप सर्विस में हो, ट्रेनिंग में हो, तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज रहती है, आकांक्षाएं रहती है कि क्या रहता है, ये जर्नी कैसा है, कैसा रहेगा, क्या बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ। तो सर, अगर आप कुछ ये सब विषय में हमारे साथ शेयर कर सके तो अमन सर, आपसे शुरू करेंगे। Good afternoon, everyone. I am Aman Pratap Singh, and I am as traffic probationer of the 25 batch. I secured all in rank 402 in the recently concluded UPSC civil service examination. And I know Manveer from the very fact that when I was preparing, he was preparing along with me. So we have a long association that goes back in time. First of all, I would like to heartily congratulate DS Edu Hub to bring out a vertical which is so accessible to everybody.
if I talk about my journey as an aspirant, it started in the year 2020, and I started preparing out of my own. I did not take any coaching as such, and along the way, I realized that how important guidance actually is. Since it was primarily the year when COVID hit, therefore the coaching institutes were not as accessible. So I had to resort to hit and trial methods. However, I believe that when you have the right guidance in preparation, the journey becomes easier. In examinations like UPSC, CSC, SSC, and whichever exam that you're preparing for, I believe that what you are reading is equally important as what you're not reading, what not to read, and whatever you're reading, how to study that content, how do we put it to practical applications, how do we approach the previous year questions. All of it comes very naturally if you sit down and have the right guidance with you available. So, in that spirit, I would like to congratulate DS Edu Hub for bringing out a vertical which will cater to the problems that I just mentioned. When I talk about my attempts, my selection was there in the third attempt. So, I believe that, and by the time I appeared for the year in which I got selected, I had already resorted to a different mode of education, which was the online one. So I prepared largely from my home, and that was made possible only because of the services, the facilities provided by the online educational institutions. And therefore, I realize, and I take it very humbly, that online education system will prove to be a game changer in the domain. Uh, be it the flexibility of the place, be it the flexibility of time, affordability as we have it, uh, the online availability of AI chatbots of your faculty who are present, the facility of having recorded lectures with you available at all times so that you can go and have your revisions. So all this is made and facilitated much easier by the online system. And I do humbly believe that DS Educational Hub will prove out to be a game changer in the domain. And I wish everybody a great luck. Thank you. थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स। सर के बातों से मुझे एक फिर से कोट याद आ रही है एरिस्टोटल की, वेयर ही सेड कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन माइट बी बेटर बट द फ्रूट्स आर डेफिनेटली स्वीटर। सो सर का जर्नी हमें ये दिखाता है कि कितना भी संघर्ष करना पड़े स्टार्टिंग में, नो मैटर हाउ मच डिफिकल्टीज वी गेट, एंड रिजल्ट इज ऑलवेज व्हाट वी सी सर हैज अचीव्ड। थैंक यू सर। सो नाउ उमेश सर, इफ वी कैन हियर समथिंग फ्रॉम यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए सर ने आपको पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जितने फ़ायदे हैं वो बता दिए हैं। एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके लिए जब भी आप करना चाहें जब कर सकते हैं। तो उस सब चीज़ों में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। बेसिकली एक जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एज ए स्टूडेंट हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम कहाँ पर फेल करते हैं। जनरली आपने देखा होगा स्कूल में जो स्कूली बच्चा होता है ना, जो सिंसियर होता है, आता है, टीचर उसे पढ़ाता है, उसे समझता है, घर जाता है, रिवाइज़ करता है, टीचर ने होमवर्क दिया उसे कंप्लीट करता है, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ना हमारी आदतें कम होती जाती हैं। जैसे जैसे कॉलेज में जाते हैं तो एकदम फ्री, क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ रहे हैं। वही एटीट्यूड हम कैरी करते हैं अपनी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में, तो जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो फैकल्टी होती है, उसका रोल आता है। आप आइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िए, फैकल्टी की बातें सुनिए, समझिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, घर जाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए, जो होमवर्क मिला है उसको करिए। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के एग्ज़ाम को आपको अब क्लियर करना है तो। मोस्टली बच्चे जो फेल करते हैं वो यही फेल करते हैं कि जो भी उनके असाइनमेंट्स हैं, जो फैकल्टी ने पढ़ाया है, या तो रिवाइज़ नहीं करेंगे या फिर असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो जब भी आप तैयारी करें तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जैसा कि DS एडू हब में हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो लगता है मुझे कि आपको इस सब चीज़ का तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और उसके बाद एक चीज़ और, ये तो सच है कि एग्ज़ाम टफ़ है, हर किसी का नहीं हो पाता है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं है देखिए सभी बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो, कुछ बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो आप कभी भी निराश ना हो। आप अपने आप में सशक्त हैं और आपको यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी है, हम लोग हैं,
सर हैं, सबका सपोर्ट रहेगा। एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपके पास जीवन में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो बस थैंक यू। बाकी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ DS EduHub को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ताकि मथुरा के रीजन के जितने बच्चे हैं, मैं खुद मथुरा को बिलोंग करता हूँ एक्चुअली, तो वहाँ के जितने लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबल रहेगा एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर पाना। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द वर्ड्स। जैसे कि सर ने बोला कि एक्सेसिबिलिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स, और हम एक चीज़ रीइटरेट करना चाहते हैं। SSC हो, UPSC हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, वॉट एवर इट इज़, हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम तक आपके साथ नहीं है, एग्ज़ाम के बाद भी है। तो वी एश्योर फ्रॉम DS EduHub साइड्स कि नो मैटर हाउ मच मेंटरशिप, गाइडेंस, हैंड होल्डिंग यू रिक्वायर, हम हमेशा साथ हैं आपके। आफ्टर दिस आई विल रिक्वेस्ट युतेंद्र कुमार सर to brief about his subjects and give us some words. यहाँ बैठे हुए आदरणीय चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और जितने भी साथी हैं, वो टीचर जो हमारे साथ मंच पे हैं और वो टीचर जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम यतेंद्र भारद्वाज है और मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 2010 में जैसे सर ने अपना स्कूल डाला, ऐसे मैंने अपना कोचिंग भी डाला था, और शायद आपने नाम भी सुना हो, NCR के अंदर में शोप्सिस नाम से डाला था। बहुत अच्छा चला, ऑल इंडिया लेवल पर रैंक दिए हुए हैं, RBI में रैंक दिया हुआ है 196 आउट ऑफ 200। 4 साल तक मैंने उसको रन किया। उसके बाद मैं पैरामाउंट में जुड़ा, और पैरामाउंट में जिन टीचरों के आज नाम हैं, आप जिनको सुन रहे हैं, जो बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने मेरे साथ पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं जो 2020 के बाद उठे हैं। 2020 तक नाम नहीं था, 2020 के बाद ऑनलाइन में उनका नाम हुआ है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। उससे पहले मेरी क्लासेस मुखर्जी नगर, मुनीरका, रोहिणी, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, पटना, नया टोला, दानापुर और आपका एक बोरिंग रोड, इन सारी जगहों पर मेरी क्लासेस हो चुकी हैं। एक इंस्टीट्यूट का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट रहा है ना। उसने बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं, टॉपर्स दिए हैं। अगर हम बात करें अपने बारे में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे सर अभी GST के बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह निकाला है। 2012 से लगातार हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। अगर मैं SSC की बात करता हूं, तो SSC में हम मल्टीटास्किंग से लेके और CGL में हायर रैंक तक हमने बच्चे दिए हुए हैं, है ना। और ये हमारा एक तरीके से सौभाग्य भी मानो कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जिनका उद्देश्य है गांव-गांव तक शिक्षा को पहुंचाना। स्टार्टिंग में बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन आए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन आए, और अब एक नया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये उससे भी ज़्यादा नाम कमाएगा। मैंने उन संस्थानों को देखा हुआ है कि जो एक बहुत छोटी सी जगह पर अपने संस्थान को चला रहे थे, और आज उनका रिकॉग्निशन ऑल इंडिया लेवल पर है, उनका नाम ऑल इंडिया लेवल पर है। शायद जब वो कंप्लीट करते थे तब उतना अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में उनका नाम है, और वो बहुत अच्छा बच्चों को दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम अपने बेस्ट से बेस्ट दे सकें, है ना। और अगर हम मैथ्स की बात करें, तो आप जान रहे हैं कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसकी रीजनिंग अच्छी होती है, और जिसका मैथ्स और रीजनिंग दोनों अच्छे होते हैं उसका SSC क्लियर होता है। ये तो सर भी मानेंगे। कहाँ हैं जिन्होंने निकाला है? तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होता है उनके दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं। इंग्लिश और बढ़िया हो जाए, GS की फैकल्टीज़ में अच्छे से दम लग जाए, स्कोर हो जाए, तो बच्चा सिलेक्शन ले ही जाता है। टीचर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
क्योंकि टीचर जानता है व्हाट वी हैव टू रीड एंड व्हाट वी हैव नॉट टू रीड, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पूरी किताब आपके पास रहती है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं और अब पैटर्न किस तरीके का है, ये टीचर को सबसे अच्छा पता होता है। बच्चा जितना मेहनत करता है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत टीचर करता है। वो क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखता है, उनके सॉल्यूशंस को देखता है, उनकी ट्रिक्स बनाता है। जब भी कोई मार्केट में नया क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए टीचर रातों जगता है, मेहनत लगाता है और उसके नोट्स बनाता है, ट्रिक्स बनाता है, जिससे बच्चा अपना अच्छा दे सके, है ना सर। तो मैथ्स की तो बहुत बड़ी भूमिका है और अब कुछ समय से देख रहे हो, पिछले 2 सालों से मैथ्स को लेके इश्यूज भी हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सीजीएल के अंदर में, उनको लेके धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। हो सकता है आगे एसएससी अच्छे क्वेश्चंस दे तो अच्छी और मेहनत हो सके और हम भी बच्चों को और अच्छी चीज़ें दे सकें। तो मैं, अगर सर कहते हैं तो मैं अपनी कुछ लाइनों से अपनी चीज़ों को ख़त्म करूं। अब ये जो लाइनें हैं आप देखिएगा, वर्ड इतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मेरे ही द्वारा लिखी हुई हैं, पर हो सकता है कि हम लोगों के लिए काम आए, है ना जी। ये मैं अपने बच्चों को समर्पित करना चाहता हूं जो इससे जुड़े हुए हैं और जो डीएस एजुकेशन हब से जुड़ेंगे। जीवन का संग्राम देख, प्रतिदिन सुबह शाम देख, ना दिन देख ना रात देख, ना इतना तू विश्राम देख, बस काम देख, बस काम देख, जीवन युद्ध तमाम देख, तू अपने अंदर राम देख। छोटे छोटे लक्ष्य देख, पूरा कर समेट देख, क्या खोया क्या पाया देख, कितना कुछ कमाया देख, पहले से कुछ ज्यादा देख। छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं, उनको धीरे धीरे पूरा करना है। तो वही लाइन है, छोटे छोटे लक्ष्य देख, पूरा कर समेट देख, क्या खोया क्या पाया देख, कितना कुछ कमाया देख, पहले से कुछ ज्यादा देख। हर बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, पहले से कुछ ज्यादा देख, फिर कुछ अच्छे परिणाम देख, तू अपने अंदर राम देख। इसी के साथ डीएस एजुकेशन हब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मेरा खुद का व्यक्तिगत प्रयास इतना रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों पे इसको ले जा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, क्या शानदार कोटेशन दिया सर ने। और जैसे कि सर ने बोला कि सर हमारे साथ है, सर बच्चों के साथ है, एंड सर का जो प्रयास रहेगा, जहाँ तक बच्चों के साथ आगे लेके जाना बच्चे जाना चाहते हैं, सर हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे संतोष तिवारी सर को, जो हमारे इंग्लिश के फैकल्टी है। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर और डायरेक्टर सर, बाकी यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए हैं वो, प्लस मेरे कलीग, और प्लस यहाँ पे जो और लोग हैं जो सपोर्ट के लिए हैं, बैकएंड पे जो जा कर के बैकएंड पे काम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, जोश आ जाता है, प्लस और डी स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं या देखेंगे। मैं संतोष तिवारी इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ पिछले 25 साल से, और अभी डीएस एडू हब के साथ जुड़ने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। सर लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं बड़ा अच्छा मुझे जो लगा एक बात की, चेयरमैन सर ने कहा कि हम गांव में एजुकेशन को बिल्कुल इस्टेब्लिश किए और वहाँ से चीज़ों को लेकर के एक लंबी यात्रा करके कहाँ तक पहुँचे। मुझे याद आ गया अपने एक स्टूडेंट के बारे में, उसकी जब वो पहली बार आई थी एमपी से, 8 नंबर उसके आए थे 50 में, और उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सर इसको आप गाइड करो और इसको एसएससी में सेलेक्ट कराना है। तो मुझे याद है कि जब मैंने उसका टेस्ट लिया, 8 नंबर आया, तो मैं कहा तुम्हें मेहनत खूब करना पड़ेगा। बोली सर ठीक है, आप जो कहें मैं करूँगी। और मुझे लग रहा शायद 8-9 महीने हुए, और फिर उसका बाद एग्ज़ाम था, 35 नंबर उसके 50 में आ गए थे। उसमें 30 के ऊपर पाना मतलब सिलेक्शन, वो जो एक दौर था एसएससी का जिस टाइम पे चीज़ें ऐसी होती थी। और उसका मेंस में 186 आया आउट ऑफ 200, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा स्कोर कैसे आ गया। वो स्टूडेंट जिसने 8 नंबर स्कोर किया था मात्र,
कुछ महीनों पहले। तो मुझे खुशी हुई उस सफलता को देख करके। ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब 30 वाला 50 पा जाए या 30 वाला 35-40 पा जाए, तो मज़ा कम आता है। एक टीचर को मज़ा तब आता है जब वो किसी ऐसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाए जिसका लेवल बहुत कमज़ोर हो। और मुझे लग रहा है कि शायद ऐसी धरती में मुझे मिलेंगे अब कुछ लोग जहाँ पे शायद मुझे इस तरीके से काम करने का मौका मिले। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। प्रत्युष जी ने बताया कि अगर ख़राब करना हो किसी देश के सिस्टम को तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर दीजिए, आफ्टर दैट यू विल सी दैट द होल कंट्री इज़ डिस्ट्रॉयड। और मुझे लगता है कि शायद हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चरमरा चुका है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जब स्टूडेंट्स को देखते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो समटाइम्स वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो तो ग्रेजुएट हो चुके हैं, भ्रम में हैं वो लोग, और पता चलता है बेचारे का लेवल क्लास 6 और 7 का है। और हमें ऐसे लोगों को गाइड करके आगे बढ़ाना पड़ता है। बस अच्छी बात ये होती है कि उनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, कुछ हद तक वो बच्चे भी रहते हैं कि सर अब जो हो गया सो हो गया, अब करना है। तो ऐसे में लगता है कि नहीं ठीक है, चलो इनके साथ कुछ बातें की जाए, कुछ काम किया जाए, और फिर बहुत अच्छा उसमें कुछ निकल भी जाते हैं। मैं बाई चॉइस टीचर हूँ। मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो चुका था 2013 में। मैं गया मेडिकल दे करके चेन्नई में, लौट रहा था तो मुझे हुआ कि यार कौन ज्वाइन करने जाए। एक पोस्ट आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, मेरा उसमें हो गया था। और मेडिकल देने के बाद मेरा मन क्या नहीं यार, टीचिंग वाली जॉब ज़्यादा अच्छी है, आई एन्जॉय दैट। तो मैं सच में टीचिंग को एन्जॉय करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसा कि यतिन सर ने नाम लिया, एक बड़े इंस्टीट्यूट का मैं भी वहाँ पे साथ में उनके पढ़ा चुका हूँ। प्लस आज इंडिया के नंबर 1 IAS के इंस्टीट्यूट में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स के साथ मैं एक चीज़ें देखता हूँ, कई बार वो बहक जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से हालचाल पूछते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, भैया ये बता दो। हर व्यक्ति आपको अपने तरीके से बताता है। मैं केवल ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमेशा एक सही डॉक्टर की सलाह लीजिए। उसके हिसाब से मरीज़ ने कौन सी दवाई खाई और वो ठीक हो गया, उसकी बॉडी का सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम, उसका मैकेनिज़्म, उसके बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम सब अलग होता है। आपकी बॉडी का सिस्टम अलग है। डॉक्टर आपको बेहतर जज करेगा, वो बता पाएगा। जस्ट लाइक दैट वी टीचर्स आर अ बेटर जज फॉर यू। हम आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप सीधे किसी और से ना पूछ के, ना भटक के टीचर से बात करें, टीचर से मिलें। आज के यूथ में मैं बहुत ये कमी पाता हूँ कि वो किसी से भी पूछ पाछ के उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ज़रूर, मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप ध्यान दें, टीचर्स जो कहे उसकी बात को मानिए। सर ने भी कहा कि स्कूल सिस्टम में हम प्रैक्टिस करते थे, रिवाइज़ करते थे और चीज़ें हो जाती थी, बड़ा अच्छा होता था। कॉलेज में आने के बाद आज़ादी मिली और ये सब सिस्टम बंद हो गया, और वहीं से एजुकेशन में कमी आती है और बच्चा असफलता की राह पे आगे बढ़ जाता है। तो जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने भी आपको बताया कि अल्टीमेटली मुद्दा वही है कि आप प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, बढ़िया से लगे रहें जम करके। बाकी हम लोग तो ही हैं आपको उस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। इस एजुकेशन सिस्टम को जो गड़बड़ हो चुका है उसको सुधारेंगे आराम से। और मैथ्स रीजनिंग का ज़रूर बिल्कुल रोल है अच्छा खासा। और मथुरा आसपास के इलाके जहाँ से ये DES EduHub का जन्म हो रहा है, यहाँ पे सच में मैथ्स अच्छा होता है। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं उस इलाके से। तो सर उनको दिक्कत होती थी खाली इंग्लिश में, और उनके लिए इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता था कि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और मैथ और रीजनिंग में लगभग रुझान हो जाता है हिंदी भाषी क्षेत्रों का, वो ठीक ठाक कर जाते हैं। बट द मोमेंट इट कम्स टू इंग्लिश दे हैव सम प्रॉब्लम्स, और वो डर ज़्यादा है, समस्या कम, मेहनत करते हैं वो। अगर कोई बच्चा मैथ्स में मेहनत कर रहा है, रीजनिंग मेहनत कर रहा है, तो मेहनती तो ही है वो। वी कांट इग्नोर दिस दैट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। बट प्रॉब्लम क्या है, वो कतराता है, भागता है इंग्लिश से, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उसे रटान वाले सिस्टम में ले जाता है, बिना तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ बेचारा बच्चा आकर के परेशान हो जाता है। तो आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। इस 25 साल के अनुभव की चीज़ें आपके साथ साझा की जाएंगी और आपको बेहतर तरीके से गाइड करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं एक चीज़ और इसी के दौरान क्लियर करना चाहूँगा कि अमूमन कम्युनिकेटिव इंग्लिश और जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होता है, इसमें बड़ा अंतर है।
बोलचाल वाली अंग्रेजी अलग मायने रखती है, जैसे बोल देते हैं माई सेल्फ राहुल। अब ये ग्रामेटिकली गलत है, एग्ज़ाम में आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरे से पूछा गया था जब मैं बीएड कर रहा था वैक्यूम की स्पेलिंग, मैं एमए इंग्लिश का बंदा, तब मैं जब बीएड करने के बाद वाइवा में पहुंचा और वहाँ के जो वाइवा ले रहे थे उनको पता चला कि इंग्लिश में बंदा पहले से ही कुछ पढ़ा लिखा रहा है, तो उन्होंने कहा कैन आई आस्क सम क्वेश्चन इन इंग्लिश। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू नो दैट कि चलो बढ़िया अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छी बात होगी। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर बढ़िया बताया। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वैक्यूम की स्पेलिंग, मैं कहा यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने कह दिया VACCUM। उन्होंने कहा नो इट्स रॉन्ग। फिर मैं थोड़ा सोच के बोला, मुझे लगा कि शायद मैंने जो C बोला शायद ये गलत लगा होगा, तो थोड़ा सा इनको सिंपल बताते हैं। मैं कहा सर VACCUM। उन्होंने फिर कहा नो इट्स रॉन्ग। अब मैं सरप्राइज्ड, MA इंग्लिश वाला बंदा उसकी स्पेलिंग को कोई गलत बता दे, जिसके कुछ विद्यार्थी सेलेक्ट भी हो चुके हैं, कैसा महसूस होगा। मैंने फिर उनको आराम से बताया, मैं कहा सर VACCUM। उन्होंने फिर से कहा नो इट्स रॉन्ग। और तब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हिल गया। वाइवा ख़त्म हुआ, वो सब ठीक ठाक रहा, उसमें कहीं कोई नंबर में कोई दिक्कत नहीं आई। अंग्रेजी में क्या ही नंबर कम कर देते। फिर मैं डिक्शनरी चेक किया मोबाइल में, उस समय स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे, बट एक इनबिल्ट मोबाइल में डिक्शनरी थी एक, तो मैंने देखा तो VACCUM मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने VAC लिख के छोड़ दिया और फिर मुझे पता चला कि वैक्यूम की स्पेलिंग जो हम लोग जानते थे VACC, वो एक्चुअली होता है VACWM। हो सकता है सरप्राइजिंग लगे आपको, लेकिन सच्चाई यही है। और वो फिजिक्स वाला एक ही है, ऐसा मत सोचना। हमने भी सोचा शायद अंग्रेजी वाला VACC होगा और इंग्लिश फिजिक्स वाला VACW, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेलिंग सही स्पेलिंग है VACWM। ऐसे एक बड़ा प्यारा शब्द बोलते हैं, बड़ा बाउंडेशन है। डिफेंस में नहीं जाना, बहुत बाउंडेशन है। बाउंडेशन कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आज के बाद। ऐसी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। जो बेसिक कमियां हैं अंग्रेजी की वो आपकी दूर की जाएंगी और आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लगभग 10,000 के आसपास वोकैबलरी करा करके, लगभग ठीक ठाक ग्रामर का जो पार्ट है वो करके, हम लोग रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करके, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज तीनों ही पार्ट का ठीक ठाक होता है। ये हम सिलेबस में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। आपको जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बाकी बहुत सी चीज़ें हम लोग उसमें करेंगे। एक अच्छी टीम हमारे पास है। DS एडू हब को मैं कॉन्ग्रेट्स करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी टीम को जोड़ा है। और उस इलाके के अलावा पैन इंडिया हम लोग नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जहां तक हमारी पहुंच होगी, हम लोग अच्छे से काम करके और एक बढ़िया सिलेक्शन देंगे और जल्द से जल्द हमारा भी एक अपना नाम होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसके बाद मुझे लगता नहीं कोई वैक्यूम की स्पेलिंग गलत करेगा। थैंक यू। तो जैसे सर ने बोला कि बहुत छोटे छोटे इंटीग्रिटीज़ होते हैं जो हमें जानना होता है, तो यही हमें सीखना है टीचर्स के साथ। नाउ एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आज हमारे साथ हैं फैकल्टीज़, उनसे हम 2 शब्द सुनेंगे। मिस्टर अमित सिंह सर जो कि GS इकोनॉमी के फैकल्टी है। अमित सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं DS एजुकेशन हब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे SSC CGL के प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के लिए एज इकोनॉमिक्स फैकल्टी सेलेक्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि आज की अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो आज वही बच्चा सेलेक्ट है जिसके पास राइट टीचर के साथ साथ राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप एंड राइट एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, तो उसके पास सक्सेस अवेलेबल है। अदरवाइज वो तैयारी करता है लेकिन तैयारी के साथ साथ वो कहीं ऐसा घूम जाता है, ना तो सिलेक्शन ही ले पाता है और नहीं आगे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाता है और वापस जहाँ से वो गया है वहीं आ जाता है। तो एज अ GS फैकल्टी इकोनॉमिक्स टीचर मैंने ये देखा कि SSC में GS का अपना एक अलग रोल है और सबसे वास्ट सब्जेक्ट है GS, जिसमें काफ़ी सारी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आती हैं। इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, करंट अफेयर्स आती है, जो कि बड़ा मुश्किल है याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ बेसिस पे मैं बात करूँ या डेली बेसिस पे बात करूँ, डेली बहुत सारी GK बन जाती है नई, डेली करंट अफेयर्स बन जाते हैं नए, तो इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं
कि इनकी रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देते हैं, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की थोड़ी डिफर है कि मैं रटने पे फोकस नहीं करता हूँ, या मैं रटने को प्रमोशन नहीं दूंगा कि रटना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, स्पेशली क्वेश्चन करने हैं या स्पेशली कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो हम जाते हैं किस पे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे जाते हैं। कि जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरी स्पेशल पर्सनली स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की, वो ये रहती है कि ऐसे टॉपिक को फोकस किया जाए जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए। और इन इकोनॉमिक जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है, ये आपको भी पता होगा, नेशनल इनकम हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी हुई, फिजिकल पॉलिसी हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, या मनी एंड बैंकिंग हुआ, कि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक, इसी स्ट्रैटेजी के साथ डेली बेसिस पे आपके डाउट सॉल्विंग, डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराना, डेली बेसिस पे प्रीवियस सेट लगवाना, ये सारी चीज़ें लेके मैं आप डीएस एजुकेशन हब के साथ आज जुड़ रहा हूँ। और एट लास्ट मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि टीचर्स बहुत हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, टीचर्स हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन टीचर्स के पास या टीचिंग के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आपके पास राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलॉन्ग विद टीचर्स, या टीचर्स टीचिंग के साथ साथ आपको ये दो चीज़ भी दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए सक्सेस पाना बहुत ईजी है। और इसी मेंटेलिटी के साथ मैं आज डीएस एजुकेशन हब के साथ जुड़ रहा हूँ, और ये मेरी अश्योरिटी है या कमिटमेंट्स हैं, पर्सनली मान लीजिए, प्रोफेशनली मान लीजिए, विद डीएस एजुकेशन हब, कि आप लोगों को टुगेदर या आप लोगों को कलेक्ट करके आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाना, एग्जाम को क्रैक करवाना, इसी मेंटेलिटी या इसी मोटिव के साथ आज मैं एजुकेशन के साथ जुड़ रहा हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर ने एक बात बोली थी कि अ ट्रू टीचर इज़ द वन हु मेक्स अस थिंक ऑफ आवर सेल्व्स। तो हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं हमारे, सभी बच्चों को अपने अंदर की सोच को जगाने के लिए मदद करेंगे। अब जैसे हम ये सेरेमनी ख़त्म कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी मौजूद मेंबर से कि हमारा ब्रोशर को रिवील करें स्टूडेंट्स के सामने। तो एक हम छोटा सा सेशन करेंगे जहाँ पे सब लोग एक बार ब्रोशर पकड़ के इनॉग्रेट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड अप प्लीज एंड जस्ट इनॉग्रेट द ब्रोशर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. तो जैसे हमने आज ब्रोशर को रिवील किया, ये ब्रोशर का लिंक डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो जैसे ही आएगा यूट्यूब पे बहुत जल्दी। तो उसमें आप क्लिक करके ये ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो और इसमें जितने भी फीचर्स हैं आप देख सकते हो। मैं बस 2-3 लाइन थोड़ा बता देता हूँ इस ब्रोशर में एक्चुअली हम क्या डिफरेंशिएटर फैक्टर ला रहे। हमने बेसिकली कुछ पैरामीटर्स फिक्स किया है कि बाकी टिपिकल एसएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है और हम क्या अलग दे रहे हैं। तो ये 4-5 जो पैरामीटर्स हैं मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। पहली बात तो फैकल्टीज, सबसे बड़ी पैरामीटर। In this parameter, every institutes have a mixed set of faculties. Various segment से आते हैं, various जगह से आते हैं, सिर्फ SSC नहीं, बहुत सारे डोमेन से आता है। But DS Edu Hub में हमने बहुत स्ट्रीमलाइन रखा है कि जो भी फैकल्टीज होंगे ये 10+ years मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आएंगे। SSC क्वालिफाइड भी होंगे, जैसे आपने देखा बहुत सारे फैकल्टीज हमारे SSC क्वालिफाइड है। प्लस ये खुद SSC एग्जाम they have attempted and they are renowned in that particular segment. So it's not a mixed bag of teachers. We are delivering a niche and we want to focus on that niche domain. So this is the first point of DS Edu Hub. Secondly, the batch size. Generally क्या होता है, 80 से 200 तक बैच साइज चला जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे।
बट यहाँ पे वी हैव केप्ट इट स्मॉल एंड इंटरैक्टिव। छोटा बैच साइज होगा, मल्टीपल बैचेस होंगे बट छोटे बैचेस होंगे, सब में मेंटर्स अलाइन रहेंगे और इंटरैक्टिव सेशन होंगे। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। तो आप टीचर से जैसे आप पढ़ोगे, सिमिलरली टीचर्स को भी चाहिए कि आपसे फीडबैक रिव्यूज़ ले। तो इसलिए बैच साइज छोटा होगा ताकि हर पर्सन, हर स्टूडेंट को ड्यू अटेंशन मिल सके। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, डाउट सॉल्विंग। जैसे सर लोगों ने बताया, बहुत सारे बच्चे क्लास कर लेते हैं, आफ्टर द क्लासेस दे प्रोबेबली हैव टू वेट इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग देयर डाउट्स। ऑनलाइन टीचिंग में ये सबसे बड़ा बैकलॉग रहता है कि हमें इमीडिएटली अगर कोई डाउट आता है तो वी आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई दैट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डेली चैट सपोर्ट, so you will have a dedicated chat support with the mentors as and when required. Also, we will have weekly doubt clinics. We are not calling it doubt sessions, we are calling it clinics. Why clinics? Because कोई बीमार होता है तो क्लिनिक जाता है, सिमिलरली किसी को डाउट होता है तो आप डाउट क्लिनिक्स में आइए। तो DS Edu Hub के डाउट क्लिनिक्स में आइए। वी विल हैव वीकली डाउट क्लिनिक सेशंस जहाँ पे आप टीचर्स फैकल्टीज के साथ वीकली मिलोगे। ऑनलाइन माध्यम ही होगा बिकॉज इट इज़ एन एंटायर ऑनलाइन सेटअप एज ऑफ नाउ। तो ऑनलाइन आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कमिंग टू द फीस, चलिए फीस में बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा फोकस एरिया पे जाते हैं। हमारा जो फोकस एरिया है वो जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स पे नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी लेफ्ट राइट सेंटर गवर्नमेंट एग्जाम। हमारा पूरा का पूरा फोकस SSC पे ही है। तो हम SSC को ही, जैसे मैंने बोला, नीश बना के विथ नीश फैकल्टीज एंड नीश ओरिएंटेशन हम SSC पे ही फोकस करेंगे। और जो हमारा फीस है जनरली क्या रहता है, आप लोगों को पता ही होगा बाकी मार्केट में क्या SSC के फीस वगैरह रहता है। फिर भी एक एवरेज अगर मैं मान लूँ तो 6 से 12 हज़ार तक, 6 to 12,000 इज़ द फीस विच वी हैव। विथ DS Edu Hub वी आर लॉन्चिंग दिस प्राइस एट ओनली 1,000 रुपीज़। तो आई वॉन्ट टू रिपीट, इट्स अ फुल फ्लेजेड कोर्स whose course price is only 1,000। हमारा बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of February। तो आपको एक्सेस वगैरह जो भी क्लासेस वगैरह है, जैसे आप एनरोलमेंट करोगे आपको मिल जाएगा। तो 1 तारीख से हमारे क्लासेस स्टार्ट है विद अ फीस ऑफ 1,000 ओनली। तो ये ओवरऑल एक जिस्ट है जो हम एक डिफरेंशिएटर हम बता रहे हैं अपने आप को इन फ्रंट ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बाकी देखिए, मार्केट में जैसे सर ने बोला बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है। वी वोंट से कि हम सबको, मतलब वी विल बाईपास एवरीवन, बट we are definitely assuring कि we will give you the best guidance and hand holding till the end of your journey. And your journey doesn't only end at the time you give the exam or qualify the exam. Even after that, ये hand holding हमारे साथ रहेगा। तो ये था हमारा आज का इवेंट जहाँ पे हमने अपने टीम मेंबर्स और फैकल्टीज़ को रिवील किया। इसके साथ एक और छोटा सा एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा डायरेक्टर सर के परमिशन से। हम जल्द ही YouTube पे कुछ सीरीज़ लाएंगे फैकल्टीज़ के साथ। जैसे हमारा मेंस आ रहा है, जनवरी का एंड है, हाँ, तो जनवरी में जो मेंस है मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैकल्टीज़ को भी, और हमने ये सब प्लान किया है कि हम YouTube पे कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस लाएंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे। सारे फैकल्टीज़ वी विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर, स्ट्रैटेजाइज फॉर this year mains, and eventually we'll bring out more subject and orientation lectures with respect to every faculties as well. Thank you everyone.